Hello everyone, welcome to All Aboard. So in this particular video, this is a kind of 4-in-1 video. First of all, we'll be covering the latest 2025 master directions of RBI on the currency management, including the clean note policy, currency chest, counterfeit directions and penalty framework. So have you guys ever wondered how RBI ensures that we get always clean, authentic and usable currency? How the banks huge cash operations are managed and what happens when they go wrong, right? So in today's video, we'll be definitely discussing on how the RBI is managing our currency system, from incentives to the banks for a good service to penalties for poor handling. We'll be discussing about each and every stuff in this particular video. So this is a 4-in-1 video. We will be covering 4 master directions in one video related to currency management, clean note policy, currency chest, counterfeit directions and penalties. Before starting the video, I would like to tell, if you are preparing for your RBI Grade B examination 2025, you can start your journey with Team All Aboard. You can download the All Aboard application and there you will be finding all the PDFs related to the YouTube sessions as well. You can also download the previous year questions and start practicing for any regulatory body examination, right? So video चालू करने से पहले, the first thing I would like to tell you guys is the basic meanings and definitions, right? So here, what is clean note policy? This is the RBI's policy to ensure that good quality currency availability to the customers, right? So here क्या RBI क्या ensure करता है कि good quality के currency notes available हो सबको. Memorandum of agreement, this is an agreement between RBI and the bank for currency chest responsibility. Now what is a currency chest? It's a place where all the notes are being stored, right? So there are so many currency chests here for the storage purpose. Linked branches, non-chest branches tied to nearest currency chest. ये ऐसी branches है जो non-chest branches है and they are tied to the nearest currency chest. That's why we call them as linked branches. Soiled notes, these are the dirty or worn notes, including the properly pasted 2 pieces notes. तो ये खराब notes हैं, right? खराब notes हैं. Then we are having multi-lated notes. These are notes where portion is missing or notes are in multiple pieces. तो ये पूरे खराब जो फट चुके होते हैं notes, जिनके कुछ pieces भी missing हैं and all, right? These are called as multi-lated notes. Imperfect note, these are notes which is being washed, shrunk or obliterated notes, right? तो ये बिल्कुल ही आपके वॉश हो चुके हैं या फिर श्रंक हो चुके हैं. तो ये पहले नोट्स की कैटेगरी बताई गई है इस सर्कुलर के हिसाब से, राइट? एंड इन एवरी सर्कुलर दीज टर्मिनोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड. तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, राइट? सो द फर्स्ट मास्टर डायरेक्शन इज फ्रेमवर्क ऑफ इंसेंटिव्स फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम फॉर द बैंक ब्रांचेस इंक्लूडिंग द करेंसी चेस्ट, राइट? सो ये पहले मास्टर डायरेक्शन से हम चालू करते हैं. रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी की नोट्स क्लीन होने चाहिए एज पार्ट ऑफ द करेंसी मैनेजमेंट. फर्दरिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, बैंक ने क्या किया है, फॉर्मुलेट किए इंसेंटिव्स टाइटल्ड करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CDES, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम. दिस इज नथिंग बट अ इंसेंटिव स्कीम. This is an incentive scheme to encourage all the bank branches to provide better customer services to members of the public, right? तो ये master circular किस लिए रिलीज किया है? Basically it provides us the incentive scheme, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDES बोलते हैं, right? So a framework created by the RBI to encourage bank to actively provide customer services like exchanging the soiled or multi-lated notes. तो बैंक्स का ये फ्रेमवर्क है, आरबीआई का ये फ्रेमवर्क है, जहां पे बैंक्स क्या कर सकता है, एक्टिवली एक्सचेंज कर सकता है सॉइल्ड नोट्स को, मल्टीलेटेड नोट्स को, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन्स, ऑपरेटिंग द करेंसी चेस्ट इन रिमोट एरियाज. सही है. दिस सपोर्ट्स द क्लीन नोट पॉलिसी. तो ये सब क्या करता है, क्लीन नोट पॉलिसी को सपोर्ट करता है. इंश्योरिंग क्लीन यूजेबल नोट्स एंड कॉइन्स आर वाइडली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. ओके, नाउ डेफिनेटली ऑल दीज इंसेंटिव्स आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस जो उनकी मेंबर्स की है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, ताकि कस्टमर सर्विस बेटर की जाए. दैट्स द सोल रीजन ऑफ गिविंग दीज इंसेंटिव्स टू द बैंक्स, राइट? अब इंसेंटिव्स क्या क्या दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने टैबुलर फॉर्मेट में सारे आपके इंसेंटिव्स डाल दिए हैं. दीज आर द इंसेंटिव्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड हियर. ओपनिंग करेंसी चेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज और हिली एरियाज लाइक JNK एंड लद्दाख. लेट्स सपोज if you are a bank and you have opened a currency chest
इन अ नॉर्थ ईस्ट एरिया, उसकी कैपिटल कॉस्ट जितनी भी आती है अप टू 50 लाख रुपीज आपको क्या हो जाएंगे, रीएम्बर्स हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, देन इफ आई टॉक अबाउट द रेवेन्यू कॉस्ट, 50% उसमें से रीएम्बर्स हो जाएंगे फॉर 5 years। सो दीज आर द इंसेंटिव्स टू प्रमोट दिस पॉलिसी। एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स 50 एंड बिलो, तो यहां पे अगर आप सॉइल नोट्स एक्सचेंज कर रहे हो तो 2 रुपी पर पैकेट का आपको इंसेंटिव मिलेगा, हर पैकेट पे 2 रुपए आपको मिलेंगे। एडजुडिकेशन ऑफ मल्टीलेटेड नोट्स, तो यहां पे वापस अगेन 2 रुपी पर नोट है। अच्छा, यहाँ पर पैकेट है, यहाँ पे पर नोट है, ये चीज ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स 65 रुपी पर बैग, हर बैग पे 65 रुपी मिलेंगे। और अगर रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच है, राइट, जहां पे कॉन्करेंट ऑडिटर ने सर्टिफिकेट लगाया कि ये रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच है, तो यहां पे आपको 75 मिलेंगे, मतलब 10 रुपए यहां पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन। कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट ब्रांचेस टू करेंसी चेस्ट 8 रुपी per 100 pieces in case of modern currency chest and 5 rupee per 100 pieces in case of other than modern currency chest, right? तो ये सारे इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे जो प्रमोट किए गए हैं। आरबीआई यहाँ पे इंसेंटिव्स देता है बैंक्स को। ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर क्लेमिंग द इंसेंटिव, ओनली दोज नोट्स एक्चुअली रिसीव बाय द आरबीआई, जो आरबीआई तक पहुंचेंगे नोट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द इंसेंटिव्स, राइट। अगर कोई नोट आपने रिसीव किया है पर आरबीआई तक नहीं पहुंचा, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर आपको कोई भी इंसेंटिव यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मल्टीलेटेड नोट्स मस्ट बी सबमिटेड सेपरेटली अलॉन्ग विद द सॉइल्ड रेमिटेंसेस, तो इनको आपको अलग से सबमिट करना पड़ेगा। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव इज बेस्ड ऑन द नेट विड्रॉल फ्रॉम चेस्ट, राइट। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन इंसेंटिव क्या है, नेट विड्रॉल फ्रॉम चेस्ट के ऊपर बेस्ड है। करेंसी चेस्ट मस्ट पास ऑन इंसेंटिव्स टू लिंक्ड द ब्रांचेस प्रोपोर्शनेटली and inspection and verification by RBI ensures no false claim is there। अब बैग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड बैग हो गया, सही है। तो 5000 पीसेस ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 2500 पीसेस ऑफ 1, 2 और 5 रुपी कॉइन, 2000 पीसेस ऑफ 10 और 20 रुपी कॉइन। तो ये आपको बैग का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं कि इफ अ ब्रांच एक्सचेंजेस 100 पैकेट्स ऑफ 10 रुपी सॉइल्ड नोट्स, तो 10 रुपए के नोट थे, 100 पैकेट्स थे, तो कितने रुपए मिलते हैं, देखो एक पैकेट पे 2 रुपए मिलते हैं, तो इट विल बी गेटिंग 200 रुपी। तो ये ब्रांच का इंसेंटिव बन जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, इंसेंटिव्स इज परफॉर्मेंस बेस्ड, नो ऑटोमेटिक पे आउट्स इज देयर, इट्स कंप्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड। मस्ट बी क्लेम्ड वाया प्रॉपर इनवॉइस फ्रॉम द करेंसी चेस्ट होल्डिंग द ब्रांच बैंक। Concurrent audit certification is required for rural coin distribution incentive। अगर आप रूरल कॉइन इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो तो वहां पे देखो 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं, राइट, पर बैग। सो कॉन्करेंट ऑडिटर का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा वहां ऐसे केस में। अच्छा, कॉन्करेंट ऑडिटर कौन होता है, ये बैंक की रेगुलर ऑडिट करता है, राइट। ऐसा नहीं साल में एक बार आके ऑडिट कर रहा है, ये रेगुलरली जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे ऑडिटर आता है और क्या करता जाता है, चेक करता जाता है, क्रॉस चेक करता जाता है। दैट इज द केस, right? Why it matters? It's part of RBI's push for clean note policy। सबसे पहले तो clean note policy को यहाँ पे RBI push करना चाहता है। They want to ensure high quality notes and coins are easily available to the public। Incentivizing banks financially encourage them to treat note exchange and coin distribution not as a burden but as a service। तो क्या होता है ना, देखो नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना, पुराने नोट्स को चेंज करना, कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज ट्रीटेड अर्लियर एज अ बर्डन बाय द बैंक। यार ये हमारा काम थोड़ी है, पर क्योंकि ये ब्रांच के रेवेन्यू को इंपैक्ट करने वाला है, बैंक के रेवेन्यू को इंपैक्ट करने वाला है, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अ बैंक कैन अर्न वाया दिस पॉलिसी, राइट। तो ये एज अ सर्विस प्रमोट हो रहा है कि हाँ यार हमको भी कुछ मिलने वाला है, नॉट एज इफ कि ये सिर्फ एक एडिशनल बर्डन है, सही है। What is the clean note policy? This is a policy adopted by the RBI to ensure availability of good quality banknotes to the public, general public, right? अगला आता है मास्टर डायरेक्शन ऑन पीनल प्रोविजन इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस एट करेंसी चेस्ट। तो यहाँ पे करेंसी चेस्ट की बात की गई है और पीनल प्रोविजंस यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने टाइमली रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपको पेनल्टीज भी लग सकती है। अंडर द RBI Act 1934 and the Banking Regulation Act, RBI issues currency management guidelines to maintain a clean note policy। तो ये गाइडलाइन में मास्टर डायरेक्शन में पुराने सारे डायरेक्शंस को क्या कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है।
मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट, तो देखो यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना होना चाहिए आपका, भले डिपॉजिट हो विड्रॉल हो, मिनिमम 1 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 50,000, तो 1 लाख से कम का ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, राइट। और मल्टीपल्स में भी होगा तो 50,000 के मल्टीपल्स के अंदर होने वाला है। टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस टू बी रिपोर्टेड ऑन द CYMCC पोर्टल बाय 7 PM सेम डे, तो 7 PM तक आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है CYMCC पोर्टल पे ऑन द वेरी सेम डे। अगर हॉलीडे आ रही है तो डेफिनेटली कुछ और प्रोसीजर बने हुए हैं, आप ईमेल कर सकते हो, राइट, उसकी जगह, और रिपोर्ट अगेन कर सकते हो ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। स्ट्राइक की सिचुएशन में इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस। फिर उसके बाद आती है पीनल प्रोविजंस की, तो देखो यहाँ अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो पीनल इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड इफ द ट्रांजेक्शंस नॉट रिपोर्टेड ऑन द सेम बिजनेस डे। पीनल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड कैसे होगा, T+0 बेसिस, मतलब जिस दिन से आप फेल हुए रिपोर्ट करना उसी दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड ट्रांजेक्शन +0, मतलब ट्रांजेक्शन डेट से ही चालू हो गया, राइट। T+1 मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके अगले दिन से, यहाँ पे तो T+0 हो रहा है तो दैट मीन्स उसी दिन से ये चीज चालू हो जाएगी, राइट। रॉन्ग रिपोर्टिंग, अच्छा यहाँ पे अगर रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है तो पीनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल अंटिल द करेक्ट रिपोर्ट इज रिसीव्ड। जब तक आपने सही रिपोर्ट फर्निश नहीं करी है तब तक आपको यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट लगता रहेगा। फ्रेश और रीइशुएबल नोट्स सेंड बाय द RBI शुड नॉट बी रिपोर्टेड एज डिपॉजिट्स, तो जो नए नोट्स इशू किए जा रहे हैं सेंड बाय द RBI उनको आप डिपॉजिट्स मत ट्रीट कर लेना, ओके। इनएलिजिबल अमाउंट इन द करेंसी बैलेंस, पीनल इंटरेस्ट लग जाएगा कैश केप्ट आउटसाइड वॉल्ट और CCTV कवरेज और सिंगल लॉक या फिर सील्ड कवर, थर्ड पार्टी लॉक्स एक्सेट्रा। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको पीनल इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने CCTV कवरेज से बाहर रखा, कैश को और वॉल्ट से बाहर रखा, सिंगल लॉक में रखा, राइट, थर्ड पार्टी लॉक्स के अंदर रख दिया, इंक्लूडेड रॉन्गली, अप्लाइज फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन टिल द डेट ऑफ करेक्शन। तो जहां से आपने गलतियां करनी चालू करी वहां से जब तक आपने करेक्ट नहीं किया उसमें क्या लगेगा, आपका पीनल इंटरेस्ट चार्ज होना चालू हो जाएगा। देयर कैन बी अदर डेफिशिएंसीज एज वेल। अब सर अदर डेफिशिएंसीज क्या हो सकती है, तो देखो शॉर्टेज हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, पिल्फरेज हो गया, काउंटरफीट नोट्स हो गए, इन सबको स्कीम ऑफ पेनल्टीज के अंदर ट्रीट किया गया है। सॉइल नोट रेमिटेंसेस, अगर मिस्टेकली आपने मिस्टेकनली रिपोर्ट कर दिया है सॉइल नोट रेमिटेंसेस को टू द RBI एज विड्रॉल्स, तो आपके ऊपर 50,000 का पेनल्टी लगने वाला है रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। करेंसी डाइवर्जन है, डाइवर्जन बिटवीन चेस्ट मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर द डाइवर्जन मॉड्यूल। अगर नहीं रिपोर्ट किया है डाइवर्जन का केस तो वापस आपको 50,000 की पेनल्टी लगने वाली है, दोनों ही जगह पेनल्टी का अमाउंट सेम है। डिलेड रिपोर्टिंग विथ नेट डिपॉजिट, इफ द नेट इफेक्ट ऑफ डिलेड रिपोर्टिंग इज अ नेट डिपॉजिट एंड नॉट अ विड्रॉल, कोई भी पेनल इंटरेस्ट नहीं लेगा बट फ्लैट पेनल्टी लगेगी आपको 50,000 की। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पेनल्टी का सारा अमाउंट सेम है, ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की आपको नीड नहीं पड़ने वाली है। रेट ऑफ पीनल इंटरेस्ट 2% ओवर द प्रिवेलिंग बैंक रेट फॉर डिलेड रिपोर्टिंग, रॉन्ग रिपोर्टिंग या फिर इंक्लूजन ऑफ इन एलिजिबल अमाउंट। तो आपकी जो भी बैंक रेट चल रही होगी ना उस पर 2% का आपको एडिशनल देना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। CYMCC allows the switching of user between chests to avoid the reporting delay. Bank must map their user ID and maintain audit trails for alternative arrangements. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अगर कोई डिजास्टर हो गया तो सॉरी आप कंटिन्यू कैसे करोगे बिजनेस को, उसका पूरा एक प्लान होना चाहिए। BCP और DRP बोलते हैं इनको बेसिकली, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। Inclusion of CYMCC contingency operations is mandatory in the currency chest business continuity plan. अच्छा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ इशू डिपार्टमेंट ऑफ RBI रीजनल ऑफिस होने वाले हैं। अपील अगेंस्ट द पेनल्टी, अगर कोई भी अपील है तो आप वो कर सकते हो विद इन 1 मंथ। पर किस पोर्टल के थ्रू होगी, CYMCC पोर्टल के थ्रू ही होगी। सिर्फ जेन्युइन केसेस के अंदर ही अपील होने वाली है, जो नॉन जेन्युइन केसेस हैं, जो आपके करेक्ट नहीं है केसेस, उनके केस के अंदर आपकी अपील यहाँ पे नहीं होने वाली है। ओके, सो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आई हैव समराइज्ड। यू शुड बी अवेयर ऑफ द पेनल्टी का अमाउंट। पीनल इंटरेस्ट क्या है, 2% अबाउ द बैंक रेट। अच्छा, यहाँ पे पीनल इंटरेस्ट कब से चार्ज होता है, T+0 से ही चार्ज होना चालू हो जाता है। और रिपोर्टिंग कब होनी चाहिए, यहाँ पे 7 PM सेम डे पे होनी चाहिए। सही है।
अगला मास्टर डायरेक्शन, तीसरा मास्टर डायरेक्शन आता है, स्कीम ऑफ पेनल्टीज फॉर बैंक्स, ब्रांचेस एंड करेंसी चेस्ट कस्टमर सर्विस डेफिशिएंसीज। अगर कस्टमर को सर्विस मिलने में कोई भी डेफिशिएंसी हुई है तो उसके लिए भी यहाँ पे पेनल्टीज गिवन है, राइट। देखो सारे ही सर्कुलर्स क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल द बैंक ब्रांचेस प्रोवाइड अ प्रॉपर कस्टमर सर्विस, बैंक्स हैज फॉर्मुलेटेड a scheme of penalties for bank branches including the currency chest for deficiencies in rendering the customer service to the members of the public, right। तो पब्लिक को अगर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो यहाँ पे पेनल्टीज दे रखी है। ये इशू है 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर एंड 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। ऑब्जेक्टिव इनका भी क्या है, देखो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सारे ही सर्कुलर्स का जो चारों आज हम पढ़ रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लीन नोट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना, करेंसी मैनेजमेंट को बेटर बनाना और कस्टमर सर्विस को इंश्योर करना कि प्रॉपरली उनको पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, राइट। अब यहां पे देखो बहुत सारी पेनल्टीज दे रखी है, नेचर ऑफ इरेगुलरिटी और पेनल्टी का अमाउंट आपको गिवन है। तो अगर शॉर्टेज हो गया इन सॉइल्ड नोट रेमिटेंस, इसको हम SNR बोलने वाले हैं, एंड द करेंसी चेस्ट बैलेंसेस अप टू 50 रुपी नोट, तो 50 रुपी पर पीस प्लस द लॉस। 100 एंड अबाव का केस है तो फुल वैल्यू पर पीस प्लस लॉस। कॉइन का केस है तो फुल वैल्यू पर पीस प्लस द लॉस। तो ये देखो आप हर केस के अंदर पेनल्टी दी हुई है। काउंटरफीट नोट के अंदर अलग पेनल्टी है जिसका अलग सर्कुलर है, उसको हम अलग से आज ही पढ़ने वाले हैं। लास्ट वाला सर्कुलर, फोर्थ वाला आपका काउंटरफीट वाला ही है, ओके। मल्टीलेटेड बिल्ड अप नोट्स डिटेक्टेड इन दी SNR। SNR क्या होता है, सॉइल्ड नोट रेमिटेंसेस एंड करेंसी चेस्ट बैलेंस। तो 50 पर पीस है यहाँ पे फॉर ऑल द डिनोमिनेशंस प्लस द लॉस सफर्ड। नॉन कंप्लायंस विद द ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय करेंसी चेस्ट। अच्छा, करेंसी चेस्ट ने अगर कोई गाइडलाइंस दे रखी है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस दे रखी है कि ऐसे ऐसे होने वाला है, उसका नॉन कंप्लायंस हुआ है तो 5,000 रुपए पर इरेगुलरिटी एंड 10,000 रुपी फॉर रिकरेंस इन द नेक्स्ट इंस्पेक्शन। दीज आर द पेनल्टीज। वॉयलेशन ऑफ करेंसी चेस्ट एग्रीमेंट टर्म्स और सर्विस डेफिशिएंसी, 10,000 रुपए पर वॉयलेशन यहाँ पे अमाउंट लग जाएगा। एंड 5 लाख इफ ग्रेटर देन 5 वॉयलेशन इन द कॉन्सिक्यूटिव इंस्पेक्शन। अगर 5 वॉयलेशन से ज्यादा हो गए तो ऐसे केस के अंदर क्या होने वाला है, आपका 5 लाख रुपए का अमाउंट लग जाएगा, राइट। पर वॉयलेशन 10,000 है, पर 5 से ज्यादा हो गए तो 5 लाख का भी लग सकता है। नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ ATMs, तो उसकी पेनल्टी अलग से सर्कुलर में गिवन है। कौन सा सर्कुलर है, ये रहा, मॉनिटरिंग ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन दी ATM। ये आया था 2021 के अंदर। अगर ATM कैश आउट हो चुका है ऑफ मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ, एक मंथ में 10 घंटे से ज्यादा कैश आउट हो चुका है, मतलब कैश आउट मतलब पैसा नहीं है ATM के अंदर एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा, सो इन दैट केस अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज विल बी लेविड। डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ इरेगुलरिटीज, तो शॉर्टेज इन दी SNRs एंड चेस्ट बैलेंसेस। अगर कोई शॉर्टेज हुआ है तो इमीडिएट रिकवरी होगी लॉस की और प्लस पेनल्टी होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है। काउंटरफीट नोट्स, काउंटरफीट नोट्स क्या होता है, देखो फेक नोट्स होते हैं, इनकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको डिटेक्ट करे यूजिंग द मशीन्स। अच्छा, अगर बैंक फेल हो गया डिटेक्ट करने में कि ये काउंटरफीट नोट है मतलब फेक नोट है कि नहीं, तो ये विलफुल इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि बैंक भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट, बैंक भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा माना जाएगा। काउंटरफीट नोट्स पेनल्टी एज पर दी स्पेशल काउंटरफीट नोट डिटेक्शन रूल्स। मल्टीलेटेड और बिल्डअप नोट्स, डिलिबरेटली कट और रिकंस्ट्रक्टेड नोट्स डिटेक्टेड इन दी रेमिटेंस और चेस्ट, 50 पेनल्टी पर पीस प्लस द रिकवरी ऑफ वैल्यू ऑफ लॉस। तो 50 रुपए पर पीस की यहाँ पे पेनल्टी गिवन है। ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस, अब ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस क्या क्या हो सकती है, तो हमने ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस का पेनल्टी तो देख लिया, पर होता क्या है ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस, वो भी तो वी नीड टू नो। सो CCTV फंक्शन नहीं कर रहा, या फिर कोई प्रिजर्वेशन रूल से आपने नॉन कंप्लाई कर दिया है, ब्रांच कैश केप्ट इम्प्रॉपरली इन द करेंसी चेस्ट स्ट्रॉन्ग रूम्स, ढंग से आपने पैसे नहीं रखे करेंसी चेस्ट के अंदर, नॉन यूज ऑफ नोट स्टोरिंग मशीन्स, नॉन अपडेशन और नॉन फंक्शनल नोट स्टोरिंग मशीन्स। अगर ऐसे ऑपरेशनल कंप्लायंसेस का वायलेशन हो रहा है तो ऐसे केस में आपको 5,000 रुपए पर इंस्टेंस लगेगी और 10,000 रुपए पर इंस्टेंस इफ रिपीटेड है। वायलेशन ऑफ करेंसी चेस्ट एग्रीमेंट, सर्विस डिलीवरी। अब करेंसी चेस्ट एग्रीमेंट और सर्विस डिलीवरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है उसकी बात कर लेते हैं।
नॉट इशूइंग कॉइन्स ओवर द काउंटर डिस्पाइट स्टॉक, आपके पास स्टॉक है फिर भी आप इशू नहीं कर रहे। रिफ्यूजिंग एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स, कोई मल्टीलेटेड नोट्स या फिर सॉइल नोट्स लेके आया है और आपने मना कर दिया है कि आप उसको एक्सचेंज नहीं करोगे। डिनाइल ऑफ सर्विस टू लिंक्ड बैंक ब्रांचेस या फिर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन, ऐसे केस में 10,000 रुपए पर इंस्टेंस, और अगर 5 वायलेशन से ज्यादा हो गए तो 5 लाख की तक की पेनल्टी भी आपको लग सकती है, राइट। एटीएम वाली पेनल्टी की हमने ऑलरेडी बात कर ली, यहाँ पे 10,000 की पेनल्टी थी शायद। और ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर पेनल्टी लेवी, तो यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होने वाले हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द आरबीआई इशू डिपार्टमेंट एट द रीजनल ऑफिस, वो डिसाइड करेंगे और लेवी करेंगे किसको, पेनल्टी के अमाउंट को। इसके लिए आप अपील भी कर सकते हो CYMCC पोर्टल पे विद इन 1 मंथ ऑफ द पेनल्टी, तो वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अच्छा, अगर अपील आपकी टेनेबल नहीं होगी, अपील आप नहीं कर पाओगे, अगर आपकी खुद की क्लरिकल एरर्स की वजह से, स्टाफ के इनएक्सपीरियंस की वजह से, फर्स्ट टाइम मिस्टेक बोल दो, ऐसे रीजंस की वजह से आप अपील आगे नहीं कर पा रहे हो, अपील करने के केसेस हमेशा क्या होने चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। अगला मास्टर डायरेक्शंस आता है काउंटरफीट नोट 2025 डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। काउंटरफीट नोट होते हैं फेक नोट्स, राइट, उनका डिटेक्शन, उनका रिपोर्टिंग और उनका मॉनिटरिंग। सो बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन निकाला है, सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। द पर्पस इज टू स्टैंडर्डाइज एंड टाइटन द सिस्टम ऑफ डिटेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग द काउंटरफीट करेंसी अक्रॉस द बैंक्स एंड द करेंसी चेस्ट। ये कब से अप्लाई होने वाला है, 1 अप्रैल 2025 से हो चुका है। देखो यहाँ पे कौन इंपाउंड करता है, तो ऑल द बैंक्स एंड आरबीआई इशू ऑफिसेस। हाउ टू डिटेक्ट, डिटेक्शन कैसे होगा, ऑब्वियसली मैंडेटरी मशीन बेस्ड वेरिफिकेशन एट काउंटर्स, बैक ऑफिसेज एंड करेंसी चेस्ट। सो हर जगह क्या होनी चाहिए, एक मशीन होनी चाहिए फॉर वेरिफिकेशन, वहीं से डिटेक्शन प्रोसेस होने वाला है। कस्टमर क्रेडिट, नो क्रेडिट फॉर काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड, कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाली अगर यहाँ पे काउंटरफीट नोट डिटेक्ट नहीं हुए, डिटेक्ट हो गए तो। हैंडलिंग, नोट्स मस्ट बी इंपाउंडेड, स्टैम्प्ड एज फेक नोट्स और काउंटरफीट नोट्स, रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड नेवर रिटर्न्ड और डिस्ट्रॉयड एट द ब्रांच लेवल। ना तो आप रिटर्न करोगे ना आप डिस्ट्रॉय करोगे ब्रांच लेवल पे, आप उसको क्या करोगे, स्टैंप लगा दोगे एज काउंटरफीट नोट्स, राइट। लेस देन 5 काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड, कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट टू पुलिस। अगर 5 नोट से कम मिले हैं तो आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट करने वाले हो पुलिस को। 5 या 5 से ज्यादा मिले, इमीडिएट FIR होगी पुलिस से, क्योंकि ये एक बड़ा मैटर हो सकता है, राइट। रिसीट टू कस्टमर, मैंडेटरी इवन इफ द कस्टमर रिफ्यूजेस टू काउंटर साइन, तो भी आपको यहाँ पर रिसीट देनी पड़ेगी कस्टमर को। CCTV सर्वेलेंस, और यहाँ पे सर्वेलेंस बहुत जरूरी है CCTV कैमरास से in the banking halls and the counters. Internal arrangement, तो नोडल ऑफिसर एंड फॉर्ज्ड नोट्स विजिलेंस सेल होंगे। यहाँ पे नोडल ऑफिसर क्या करेंगे, काउंटर कोऑर्डिनेट करेंगे पूरे काउंटरफीट केसेस को विद द पुलिस एंड आरबीआई। फॉर्ज्ड नोट्स विजिलेंस सेल, तो ये सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं जो कंडक्ट करने वाले हैं। स्पेशल रूल्स फॉर ATM चेस्ट एंड डिवाइसेस, नो करेंसी ऑफ 100 एंड अबव शुड बी इशूड विदाउट द मशीन वेरिफिकेशन। 100 रुपए से ऊपर की करेंसी, 100 या 100 रुपए से ऊपर की करेंसी नोट विदाउट मशीन वेरिफिकेशन के कभी भी यहाँ पे इशू नहीं होने चाहिए। डिस्पेंस, यहाँ पे क्या है, ऑफ काउंटरफीट नोट्स फ्रॉम द ATM विल अट्रैक्ट पेनल्टी। अगर आपने डिस्पेंस किए ATM नोट्स को, राइट, विल अट्रैक्ट द पेनल्टीज। काउंटरफीट नोट्स ATM से ही निकल रहे हैं तो फिर यार ये तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे चैलेंज हो जाएगा, ऐसे केस में डेफिनेटली पेनल्टीज लगने वाली है। चेस्ट मस्ट बी फुली इक्विप्ड विद द UV लैंप्स हो गया, सॉर्टिंग मशीन्स जिनसे जो BIS स्टैंडर्ड को कंफर्म करती हैं, राइट। बैंक्स मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 1 पब्लिक यूज नोट काउंटिंग मशीन एट ब्रांचेस, तो हर ब्रांच पे एक नोट काउंटिंग मशीन यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पेनल्टीज भी गिवन है। अगर फेक नोट्स हैं, इन सॉइल रेमिटेंसेज आ रही है 5, 10 और 20 के नोट्स में, तो रिकवरी ऑफ द नोशनल वैल्यू, उतनी नोशनल वैल्यू जितने के नोट्स हैं उतना आप रिकवर कर लो। फेक नोट की बात करूं 50 की, तो रिकवरी प्लस 50% पेनल्टी लगने वाली है। जो रिकवरी होगी वो तो होगी आपकी 50 की, पर उसके ऊपर 50% पेनल्टी भी लग जाएगी। 100 एंड अबाव के फेक नोट्स हैं तो ग्रेडेड पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन द CPM अप टू 200% ऑफ द वैल्यू, 200% तक यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी। CPM क्या होता है, काउंटरफीट पर मिलियन नोट्स प्रोसेस्ड।
फेक नोट्स डिस्पेंस वाया एटीएम और काउंटर और नॉन इम्पाउंडिंग, तो यहाँ 10,000 पर इंसिडेंस आपके एटीएम से ही फेक नोट निकल गया, इट्स अ ऑफेंस, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है 10,000 पर इंसिडेंट की। ट्रेनिंग टाइम, तो यहाँ पे मैंडेटरी ट्रेनिंग होने वाली है कैश हैंडलिंग की एंड ऑल, सो राइट। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करने वाला है, मटेरियल और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला है पूरी ट्रेनिंग की। और रिपोर्टिंग टाइमलाइन क्या है, मंथली डेटा ऑन द काउंटरफीट डिटेक्शन आरबीआई को जाएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को जाएगा और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जाएगा मंथली डेटा। 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए आरबीआई को, और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए, दैट्स द प्रोविजन। और ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैंने दे रखे हैं आपको सर्कुलर से रिलेटेड। अब फटाफट से कुछ एमसीक्यूज करते हैं और कंक्लूड करते हैं सेशन को। सबसे पहले, अंडर द करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम CDES की बात हो रही है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट अलाउड फॉर सेटिंग अप ऑफ करेंसी चेस्ट इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर आपको करेंसी चेस्ट खोलना है तो आपको यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितना अमाउंट रीइंबर्स होगा। The correct choice here is, guys, option C, 50 lakh rupees. What is the incentive paid for adjudication of multi-lated notes over the counter at the bank branches? The correct answer is 2 per piece. Next is, which of the following is eligible for an additional incentive for coin distribution under the CDES? Is it urban branches, foreign exchange branches, rural and semi-urban branches, private banks only, या फिर foreign bank branches? We have discussed this. The correct answer here is option C, rural and semi-urban areas, right? Option C is correct. What is the procedure if a bank detects 5 or more counterfeit notes in the single transaction? 5 या उससे ज्यादा counterfeit note मिल जाते हैं in a single transaction. So what is the process here? Send a monthly report, ignore if the notes are old, file a FIR and forward to the local police, return the notes to the tenderer, send the notes to the NCRB directly. The correct answer here will be, guys, option C, file a FIR and forward to the local police. अगर 5 या उससे ज़्यादा काउंटरफीट नोट्स मिल जाते हैं तो ये डेफिनेटली एक स्टेप रहने वाला है जो कंपल्सरी है। What action is taken for counterfeit notes dispensed through ATM? No action unless the complaint is raised. Penalty of 1,000, 10,000 का penalty per instance. Note is returned to the customer or reported to the SEBI. The correct choice here is option C, 10,000 penalty per instance is compulsory here. Who is responsible for reporting the counterfeit note detection to the police? The correct answer here is option D, nodal bank officer. Next is, what is the penalty for wrong reporting of currency diversion as a regular deposit or withdrawal? What is the penalty for wrong reporting of currency diversion as a regular deposit or withdrawal? तो इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, आप लोग देने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ करेंसी डाइवर्जन एज ए रेगुलर डिपॉजिट और विड्रॉल्स? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 1 लाख या फिर ऑप्शन ई 5,000। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, और मैं उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में ही यहाँ पे बता दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, राइट? सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।